Everyone, please turn on your camera. गोकुळ सर, तुम्ही नाही केला तरी चालेल. ओके सर. स्टार्ट करूयात. येस सर, येस सर. With continuation with yesterday's session. Today first we will discuss the role type settings that are related with accounts module, and then we will discuss the remaining flow. So you can access role type settings in admin module, admin role master role type settings. इस पेज पे रोल टाइप आपको सिलेक्ट करना है अकाउंट्स. अकाउंट्स में जितनी भी रोल टाइप सेटिंग्स है इस कॉलेज में जितनी भी एडेड है पहले हम वो देखेंगे. यहाँ पे ऑलमोस्ट 11 रोल टाइप सेटिंग्स एडेड है. आई विल जस्ट गो थ्रू ईच रोल टाइप सेटिंग, उसका यूज क्या है. For that I will need a student login also. I'll just select the student from the current year. Login. Yes, the first role type setting is e-mandate. Maximum amount to be deducted for mandate should be mentioned here, and amount should be in decimal format. Basically for online payments, we have a provision of setting the mandates, or in the student login, when the student pays the fee, here you can see pay fees option is there. I'll just select any one, or we have to take one student. Okay, we only have NEFT. Just give me a second. I will just set the fee for the student and I will explain. The student has already paid the fees. Before moving ahead, I will just go through the setting. Is outstanding applicable? The setting actually is outstanding applicable. It is used for showing the outstanding amount on the student receipt. So if this is a receipt at the student end or in the accountant login, here you can see amount in words, the amount that is paid, then amount due and amount due in words. I think to show this particular detail on the student receipt, this role type setting is used. Then is receipt generated by? Now, what is exactly this setting? Is receipt generated by accounts, admission fees, pay admission fees. I will select the same student. I will proceed. Right now there is no amount due. I will just set some receivable due for the student, say 100 rupees. And when I click on pay and when I click on the receipt that is generated on the accountant side or accountant login, yes, here you can see this is amount due. Right now, initially it was 0, so 0 amount was showing. So it is with this particular role type setting, outstanding applicable. Then receipt generated by, on the same receipt, here receipt generated by, and the name of person who has generated this receipt, or the account through which the receipt is generated. Now this particular receipt is generated by a login of this faculty or this employee, Sarika Pradhan. So that name will reflect over here using the role type setting. तो बहुत सारे कॉलेजेस आपको बोल सकते हैं कि रिसिप्ट पे हमें जिसने वो रिसिप्ट
जनरेट किया है उसका नाम चाहिए। तो आपको सिर्फ वो रोल टाइप सेटिंग ऑन करके देना है, तो रिसिप्ट पे वो आ जाएगा। देन ईच स्टूडेंट कॉपी रिक्वायर्ड। स्टूडेंट कॉपी बेसिकली क्या होता है, अभी इस कॉलेज में ऐसा है, ये उनका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है रिसिप्ट का। तो उनके स्टैंडर्ड फॉर्मेट में डायरेक्टली हमने यहाँ पे सेट कर दिया है, 2 कॉपीज सिंगल पेज पे हमने सेट करके दिया है उनको। तो प्रिंट लेते हैं तो ऑटोमेटिक 2 कॉपी प्रिंट हो जाती है, और वो यहाँ से कट करके फिर स्टूडेंट को देते हैं। जैसे ही हम स्टूडेंट कॉपी रिक्वायर्ड ऑन करेंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे, तो प्रिंट में यहाँ पे जिस कॉलेज में डबल कॉपी नहीं आती वहां पे ये डबल कॉपी आ जाएगी। अभी इनका स्टैंडर्ड फॉर्मेट ही वैसा है, तो प्रिंट प्रिंट में आपको डायरेक्टली 2 कॉपी मिल जाती है। बट फॉर सम कॉलेजेस वी ओनली प्रिंट द सिंगल कॉपी ऑफ रिसिप्ट, दिस वन। तो जैसे हम ये स्टूडेंट कॉपी का सेटिंग ऑन करेंगे तो 2 कॉपी में प्रिंट आउट मिलता है, स्टूडेंट कॉपी एंड ऑफिस कॉपी यू कैन से। So for that, this particular setting is required. Then display DT number in account report. तो अकाउंट का जो रिपोर्ट आता है, बैंक रिपोर्ट आता है, उसमें DT का एप्लीकेशन नंबर चाहिए या नहीं चाहिए, उसके लिए रोल टाइप सेटिंग है। आई विल जस्ट शो दैट रिपोर्ट ऑल्सो। अकाउंट्स, अकाउंट्स में अकाउंट रिपोर्ट है। अकाउंट रिपोर्ट में एक रिसिप्ट का डेली का रिपोर्ट आता है, बैंक रिपोर्ट कहते हैं उसको। द नेम माइट बी डिफरेंट इन डिफरेंट कॉलेजेस, ये लिंक है उसका। तो यहाँ पे जो रिपोर्ट जनरेट होता है, से आज का रिपोर्ट में जनरेट करता हूँ 14th ऑफ फेब का, फॉर ऑल प्रोग्राम्स एंड फॉर ऑल टाइप ऑफ पेमेंट मोड्स, एंड आई विल फेच। तो यहाँ पे जो रिपोर्ट आता है, इस रिपोर्ट में अगर आपको DT एप्लीकेशन नंबर शो करना है, एक कॉलम एक्स्ट्रा चाहिए DT एप्लीकेशन नंबर, सो दैट वी कैन एनेबल विद दिस पर्टिकुलर रोल टाइप सेटिंग। एंड डिस्प्ले शिफ्ट, सिमिलरली रिपोर्ट में आपको स्टूडेंट का कौन सा शिफ्ट है वो अगर रिपोर्ट में चाहिए, so that we can enable with this particular role type setting, display shift in the account bank report। बेसिकली अभी मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में एक ही शिफ्ट होता है, जनरल शिफ्ट, तो उनको जरूरत नहीं होती है। बट पहले ऐसा था, कुछ कुछ स्टूडेंट्स का एडमिशन फर्स्ट शिफ्ट में होता था, कुछ स्टूडेंट का सेकंड में होता था। सो दे नीड टू आइडेंटिफाई इन विच शिफ्ट द स्टूडेंट इज स्टडिंग, so that was required। नेक्स्ट, डिसेबल कैंसल रिसिप्ट फॉर एवरीवन इन द अकाउंट। ये जो रोल टाइप सेटिंग है, इससे क्या होता है, जिनके पास अकाउंट का एक्सेस है, अकाउंट मॉड्यूल का एक्सेस है, जितने भी एम्प्लॉइज के पास में है, उन सब का कैंसल रिसिप्ट का जो फैसिलिटी है, मतलब उनके लॉगिन से हम रिसिप्ट कैंसिल कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कैंसिल, या फिर रिसिप्ट ओपन करने पे भी आपको कैंसिल ऑप्शन दिख सकता है। या फिर हमारे पास अकाउंट्स में कैंसिल का सेपरेट फ्लो भी है, यहीं पे है एडमिशन फीस में कैंसिल रिसिप्ट का एक लिंक है, तो वहां पे जाके भी हम कैंसिल रिसिप्ट कर सकते हैं। तो वो सब कैंसिल की जो एक्सेस है वो हर एक के लिए वो बंद हो जाएगी इस रोल टाइप सेटिंग से। और हमें क्या करना पड़ेगा, जिनको एक्सेस देना है सिर्फ उनको हम एक्सेस दे सकते हैं बैकएंड से। इंस्ट्रक्टर टेबल में रिसिप्ट कैंसिल या फिर रिसिप्ट एडिट का एक फ्लैग है, सो वी कैन टेक द ईमेल फ्रॉम देम, फ्रॉम द कॉलेज, कि किसको कैंसिल का रिसिप्ट फैसिलिटी, कैंसिल रिसिप्ट का फैसिलिटी देना है, और सिर्फ वही एम्प्लॉय को हम बैकएंड से फ्लैग सेट करके दे सकते हैं। देन प्रोग्राम वाइज फीस अप्लीकेबल, ये बेसिकली क्या है, हमने कल सेट फी स्ट्रक्चर मास्टर देखा था। जस्ट शो दैट फी स्ट्रक्चर मास्टर, अकाउंट्स, सॉरी, एडमिन, कोऑर्डिनेटर एंड सेट फी स्ट्रक्चर मास्टर। यहाँ पे मैंने सिर्फ प्रोग्राम टाइप बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग लिया था कल। हर एक प्रोग्राम के लिए, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में जितने भी प्रोग्राम्स है, तो सबके लिए सेम फीस है, तो मैंने डायरेक्टली वो फीस यहाँ से सेट किया था, या फिर हमने फी स्ट्रक्चर भरा था। बट इन सम कॉलेजेस देयर माइट बी अ चांस दैट फॉर ईच एंड एवरी ब्रांच द फीस विल बी डिफरेंट। जैसे कि जो जूनियर कॉलेजेस हो सकते हैं, या फिर
साइंस कॉलेजेस हो सकते हैं, साइंस कॉमर्स के कॉलेजेस, तो वहां पे साइंस का फीस अलग हो सकता है। प्रोग्राम टाइप तो वही रहेगा उनका, यूजी या फिर बैचलर्स, बट प्रोग्राम्स अलग अलग रहेंगे, जैसे कि बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स, और तीनों प्रोग्राम की फीस अलग अलग हो सकती है। तो हमें रोल टाइप सेटिंग से यहाँ से हम इस प्रोग्राम वाइज फीस अप्लीकेबल यहाँ से ऑन कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग वी हैव टू नोट हियर फॉर प्रोग्राम वाइज फीस, जो भी प्रोग्राम के लिए प्रोग्राम वाइज फीस अप्लीकेबल है, हमें मास्टर टेबल में भी एक फ्लैग होता है प्रोग्राम का, जो मास्टर टेबल है, जस्ट हैव टू सर्च दैट प्रोग्राम मास्टर टेबल। हाँ, यहाँ पे भी प्रोग्राम वाइज फीस, सॉरी, यहाँ पे भी आपको फ्लैग मिल जाएगा इस प्रोग्राम वाइज फीस अप्लीकेबल का। I'll just turn this setting on। तो इस पर्टिकुलर मास्टर टेबल में आपको प्रोग्राम वाइज फीस का एक फ्लैग यहाँ पे मिल जाता है, तो यहाँ से भी वो फ्लैग हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। दैट इज अवेलेबल इन एसपी कॉलेज, आई थिंक। आई विल जस्ट शो दैट पर्टिकुलर फ्लैग इन एसपी कॉलेज। यस, यू कैन सी हियर इज प्रोग्राम वाइज फीस अप्लीकेबल, तो यहाँ पे ये फ्लैग आपको मिल जाएगा। सो व्हेन वी टर्न दिस फ्लैग ऑन, हमें हर एक प्रोग्राम का अलग अलग फी स्ट्रक्चर मास्टर सेट करना पड़ेगा। फॉर ईच एंड एवरी प्रोग्राम वी हैव टू सेट द सेपरेट फी स्ट्रक्चर मास्टर। अगर प्रोग्राम वाइज नहीं है तो हम सिंपली प्रोग्राम टाइप के ऊपर, अंडर ग्रेजुएट के लिए सबका फीस सेम रहेगा, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए सबका फीस सेम रहेगा। सो अकॉर्डिंगली हम ये फीस यहाँ से सेट कर सकते हैं फी स्ट्रक्चर मास्टर से। So for that, this particular setting is required, and additionally, this flag is also required. Each program-wise fees applicable. अगर सबका फीस सेम है, so it is better to keep this setting off, और ये flag भी हमें off रखने हैं, and simply we can set the fee structure directly using the program type. For Bachelor of Engineering, for all programs, we can set the fees at one click. So that is the use. Then receipt number contains a number sequence only. तो ये बेसिकली क्या है, आपका जो रिसिप्ट आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रिसिप्ट नंबर है, यहाँ पे आपको क्या चाहिए, पूरा रिसिप्ट नंबर जो आ रहा है ये पूरा चाहिए या फिर सिर्फ नंबर का सीक्वेंस चाहिए। तो उसके लिए वो रोल टाइप सेटिंग अप्लीकेबल है। यहाँ से हम जैसे वो रोल टाइप सेटिंग ऑन करेंगे, रिसिप्ट नंबर कंटेन्स दी सीक्वेंस ओनली, तो यहाँ पे रिसिप्ट पे हमें जो रिसिप्ट का नंबर दिखता है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ नंबर का सीक्वेंस आपको मिलेगा। मतलब अभी ये रिसिप्ट नंबर कितना है, 237, तो सिर्फ यही नंबर आपको रिसिप्ट नंबर पे दिखेगा। यू कैन सी नाउ 23 is the year and 0237 this is our receipt number sequence, तो इतना ही दिखेगा। now that 1f dash वो सब गायब हो गया। so for that this particular role type setting is required। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, then you can see if I again refresh the same receipt, now this 1f and dash is added। so one is basically organization code for this college। अगर उनके ग्रुप में से जील ग्रुप में अभी 10-12 कॉलेजेस है, तो मुझे रिसिप्ट आइडेंटिफाई करना है कि किस कॉलेज का रिसिप्ट है, सिर्फ नंबर पढ़ के मुझे रिसिप्ट आइडेंटिफाई करना है। सो वन इज द कोड गिवन फॉर दिस पर्टिकुलर कॉलेज। पॉलिटेक्निक के लिए उसका कोड 2 रहेगा, नेक्स्ट कॉलेज के लिए 3 रहेगा। फिर एफ जो है दैट इज बेसिकली ईयर शो करता है, फर्स्ट ईयर है तो एफ आएगा, सेकेंड ईयर है तो एस, थर्ड ईयर है तो टी आएगा। तो अकॉर्डिंगली दैट विल चेंज। नेक्स्ट, these are the two important settings: online payment enabled at account side, and is SWD online payment required for the student? These are recently developed and mostly इसी कॉलेज में यूज होते हैं ये सेटिंग्स। तो ये क्या है बेसिकली मैं बता देता हूँ। अभी ये दोनों सेटिंग्स ऑन है, ऑन है तो इसका मतलब क्या है,
अकाउंटेंट या फिर कैशियर उसके विंडो पे जो भी स्टूडेंट पेमेंट के लिए आने वाला है, सिंपली यहाँ पे अगर वो पे करेगा तो कैशियर ऑफलाइन रिसिप्ट जनरेट करता है यहाँ पे। मतलब स्टूडेंट ने ऑलरेडी पेमेंट किया है, आइदर कैश या फिर एनईएफटी, डीडी, चेक या फिर यूपीआई से स्टूडेंट ने ऑलरेडी पेमेंट किया है, एंड नाउ स्टूडेंट वांट द रिसिप्ट। इन दैट केस अकाउंटेंट यहाँ से पे करके रिसिप्ट जनरेट करता है। बट ऐसा भी हो सकता है स्टूडेंट विंडो पे आके बोलता है कि नहीं, मुझे ऑनलाइन पेमेंट ही करना है, मेरे पास अभी कैश नहीं है, मैं सिर्फ आपको ऑनलाइन पेमेंट ही करूंगा। और आपको क्या चाहिए कि रिसिप्ट भी ऑटोमेटिक होना चाहिए उसका। अभी ऑनलाइन पेमेंट में दो ऑप्शन है, कैशियर उसके पास जो अकाउंट डिटेल है वो डिटेल्स स्टूडेंट को दे सकते हैं, एंड स्टूडेंट डायरेक्टली अपने बैंक के ऐप से या फिर गूगल पे, फोन पे से वो अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। बट इस केस में क्या होता है, there is no involvement of the ERP for the payment, there is no involvement of our software for the payment। तो वो पेमेंट हम ट्रैक नहीं कर पाते, एंड एनी हाउ अकाउंटेंट को वो पेमेंट का रिसिप्ट ऑफलाइन ही बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक फैसिलिटी दिया है एक्सेप्ट ऑनलाइन पेमेंट करके। तो कैशियर का जो लॉगिन है उसके लॉगिन में ही ये ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा। तो जैसे हम ये रोल टाइप सेटिंग ऑन करेंगे, इज ऑनलाइन पेमेंट एनेबल्ड एट अकाउंट साइड, तो ये ऑप्शन एनेबल हो जाता है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें जो भी फीस ड्यू है यहाँ पे दिखेगा। कैशियर यहाँ पे फीस पे क्लिक करेगा। जैसे वो क्लिक करता है, यहाँ पे उनके जो पेमेंट गेटवे है उसका क्यूआर कोड ओपन हो जाता है, या फिर प्रीपेड या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी कार्ड है उसके डिटेल हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। या फिर यूपीआई है तो स्टूडेंट का यूपीआई आईडी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, स्टूडेंट को रिक्वेस्ट जा सकता है, या फिर स्टूडेंट के नेट बैंकिंग के डिटेल यहाँ पे हम एंटर कर सकते हैं। और यहाँ से हम स्टूडेंट का ऑनलाइन पेमेंट रिसिप्ट या फिर ऑनलाइन पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, या फिर वो कैशियर यहाँ पे सिंपली उस स्टूडेंट को बोलेगा कि ये स्कैन करो और पेमेंट करो। जैसे पेमेंट हो जाता है तो ये अमाउंट का रिसिप्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो दोनों पर्पज यहाँ से सॉल्व होते हैं। स्टूडेंट को पेमेंट ऑनलाइन करना होता है, वो विंडो पे आके बोलता है कि मुझे आप स्वाइप मशीन दो या फिर कुछ फैसिलिटी दो जैसे मैं ऑनलाइन पेमेंट करूं, तो यहाँ से पेमेंट भी ऑनलाइन हो जाता है। और क्योंकि यहाँ पे सॉफ्टवेयर का इन्वॉल्वमेंट है, हमारे ईआरपी सॉफ्टवेयर के थ्रू ये ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के थ्रू आ रहा है, तो रिसिप्ट भी ऑटोमेटिक हो जाता है इस पेमेंट का। एंड the accountant does not have to create a separate receipt for that particular payment। यहाँ पे ऑटोमेटिक वो रिसिप्ट आ जाएगा। तो इस पर्टिकुलर फैसिलिटी के लिए ये ऑनलाइन पेमेंट का रोल टाइप सेटिंग आपको ऑन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, इज एसडब्ल्यूडी ऑनलाइन पेमेंट रिक्वायर्ड फॉर द स्टूडेंट। ये बेसिकली स्कॉलरशिप पेमेंट के लिए बनाया है। तो ये रोल टाइप सेटिंग ऑन करने से क्या होता है वो भी हम देखेंगे। अकाउंट्स में स्कॉलरशिप फीस के लिए एक हमारा रोल है, यहाँ पे जनरेट स्कॉलरशिप फीस रिसिप्ट है। अगर किसी स्टूडेंट के केस में गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप का जो अमाउंट है कभी कभी स्टूडेंट के अकाउंट पे ट्रांसफर किया जाता है, और फिर स्टूडेंट को ये कंपलसरी होता है कि वो स्कॉलरशिप अमाउंट आके कॉलेज अकाउंट में उसको डिपॉजिट करना होता है और उसका रिसिप्ट लेना है। तो ऐसे केस में क्या करता है, स्टूडेंट जब भी विंडो पे आएगा वो फिर से वही बोलेगा कि नहीं, मेरे पास कैश नहीं है और मुझे ऑनलाइन पेमेंट करना है स्कॉलरशिप का। तो उसके अकाउंट पे ऑलरेडी गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप अमाउंट भेजा है, एंड द सेम अमाउंट द स्टूडेंट इज गोइंग टू पे टू द कॉलेज। तो ये यहाँ पे जैसे हम पे करेंगे, स्टूडेंट का हम पीआरएन एंटर करेंगे। आई विल टेक दैट सेम स्टूडेंट। यहाँ पे पीआरएन एंटर करना है, प्रोसीड करना है फॉर स्कॉलरशिप पेमेंट। फिर यहाँ से फ्रॉम स्टूडेंट पे हमें क्लिक करना है, क्योंकि अमाउंट जो है गवर्नमेंट ने स्टूडेंट के अकाउंट पे दिया था और स्टूडेंट अभी कॉलेज में आके वो स्कॉलरशिप का अमाउंट पे कर रहा है। तो हम स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो भी फीस के डिटेल्स है हम वो एंटर करेंगे, एंड यहाँ पे आपको दिखेगा ऑप्शन पे बाय पेटीएम। तो जैसे हम पे बाय पेटीएम पे क्लिक करेंगे फिर से गेटवे ओपन हो जाएगा, और ये पेमेंट स्टूडेंट स्कैन करके पेमेंट करेगा, या फिर अगर वो डेबिट कार्ड से देना चाहता है तो डेबिट कार्ड के डिटेल हम यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर उसको गूगल पे, फोन पे रिक्वेस्ट चाहिए तो हम यूपीआई आईडी यहाँ पे एंटर करके उसको रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। और जैसे वो रिक्वेस्ट वो पे करेगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक इस पेमेंट का रिसिप्ट जनरेट हो जाएगा। Is there any specific role type setting for this? और यस, ये
ये दो रोल टाइप सेटिंग है सर. इज SWD ऑनलाइन पेमेंट रिक्वायर्ड फॉर द स्टूडेंट. तो स्कॉलरशिप में पहले ये नहीं था, अभी ये लेटेस्ट लास्ट मंथ ही किया है डेवलप. ओके, यस. बिकॉज मुझे मालूम नहीं था. नहीं, ये लेटेस्ट अभी हुआ है सर, 1 महीना ही हुआ है डेवलप करके. हाँ, अगर फ्रॉम सोशल वेलफेयर है, मतलब गवर्नमेंट ने पैसा कॉलेज के अकाउंट पे दिया है, तो वो कैशियर यहाँ पे सिलेक्ट करता है फ्रॉम सोशल वेलफेयर. इन दैट केस यहाँ पे पेमेंट आपको ऑनलाइन का फैसिलिटी नहीं आएगा, क्योंकि पेमेंट ऑलरेडी अकाउंट में आया है आपके. बट जब स्टूडेंट अकाउंट पे पेमेंट जाता है गवर्नमेंट की तरफ से और स्टूडेंट कॉलेज में आके पे करेगा, तो उसके लिए हम ऑनलाइन पेमेंट का फैसिलिटी यहाँ से दे सकते हैं. बट इसके लिए रोल टाइप सेटिंग्स तो मैंडेटरी है ही, बट उसके पहले उस पर्टिकुलर गेटवे का फैसिलिटी कैशियर के साइड में हमने इंटीग्रेट किया है या नहीं, ये भी आपको डेवलपर से कंफर्म करना पड़ेगा. ओके. ये जो मैंडेट है, बेसिकली स्टूडेंट लॉगिन में पेमेंट्स के डिफरेंट ऑप्शन होते हैं. जैसे मैं अकाउंट्स में अगर जाता हूँ, पे फीस, यहाँ पे मुझे पे फीस मिलता है. यहाँ पे पे विद पेटीएम भी है, पे विद बिलडेस्क भी है. जैसे मैं बिलडेस्क पे जाऊंगा, सो यहाँ पे EMI पेमेंट का ऑप्शन है, यू कैन सी दिस. तो जैसे ही वो स्टूडेंट यहाँ पे EMI पेमेंट का ऑप्शन सिलेक्ट करेगा, स्टूडेंट हैज टू सिलेक्ट द टेन्योर फॉर दिस EMI पेमेंट. एंड यहाँ से वो एक्चुअली उसको EMI फैसिलिटी मिलने वाली है बैंक की तरफ से, आइदर थ्रू क्रेडिट कार्ड और थ्रू डेबिट कार्ड, डिपेंडिंग ऑन दी बैंक्स. तो जैसे वो इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करेगा, तो ऑटोमेटिक उसके अकाउंट में इसका स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन भी सेट होता है. पैसा तो कॉलेज को आ जाता है, बट स्टूडेंट और दैट पर्टिकुलर पर्सन हैविंग दिस पर्टिकुलर कार्ड, he has to pay that particular amount to the bank later on in EMIs. So I think for that we have given this particular amount or this role type setting. सर बरोबर आहे का? मला वाटतं हे. येस, येस, येस सर. येस, ऍक्च्युली यूज नाही केली जास्त कुठेही. E-mandate customer max amount to be deducted for mandate. Yes, mandate. I think it is compulsorily येस, used in येस. VIT, VIIT. You can VIT confirm it from VIIT. Roshan. रोशन सर. रोशन आहे का मीटिंग मध्ये? आय थिंक रोशन नाहीये. Okay. If possible, I will just log in to one of the VIT account and we will check. रोल टाइप सेटिंग्स मध्ये काही क्वेरी असतील तर विचारू शकता, तोपर्यंत मी जस्ट दाखवून देतो. If anyone is having doubts regarding role type setting of account module, please ask, because role type settings are very much important. Without that, this module cannot be set up. Yes. Many features will not work if you don't know the role type setting. आपको ये भी कॉलेज से पूछा जा सकता है कि ऑनलाइन पेमेंट्स में क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं हम. तो अगर हमारे पास गेटवे इंटीग्रेटेड है, ये गेटवे के ऊपर डिपेंड करेगा. क्रेडिट, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, UPI, EMI फैसिलिटी अगर वो गेटवे देता है, तो यहाँ पे वो भी हम ऑन करके दे सकते हैं उनको. इट टोटली डिपेंड्स ऑन द गेटवे. यहाँ पे कोई वैसा फैसिलिटी नहीं है, EMI का फैसिलिटी है नहीं यहाँ पे, बट बिल्डेक्स में है, क्योंकि उनके पास गेटवे के पास वो फैसिलिटी है. सो इट डिपेंड्स ऑन गेटवे ओनली. वो मैंडेट यही पे यूज होता है VIT में. यस, यहाँ पे ऑलरेडी वो सेट है, मैक्सिमम वैल्यू 2 लाख रुपीज. Yes. यस. तो दैट इज बेसिकली फॉर दैट स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ओनली, कि ज्यादा से ज्यादा कितने अमाउंट का हो सकता है. वी कैन चेक फॉर वन ऑफ द स्टूडेंट.
इसमें स्टूडेंट फीस है, स्टूडेंट फीस में फीस पेमेंट है. Just we can take one student who is having some fees due. रोशन, हा सर, सॉरी पवार सरांच्या नाही मीटिंग. काही इशू नाही, काही इशू नाही. जस्ट आपल्याला एक इथं ई मॅन्डेटची कुठली रोल E-mandate फॅसिलिटी काय आहे का आपल्याकडे? ई मॅन्डेट आहे ना, आपण स्टुडंटला ई मॅन्डेट दिलाय. हम्म. त्याच्याकडून काय करतो आपण, ई मॅन्डेटचा एक फॉर्म आहे, ओके. फॉर्म भरून घेतो येस. आणि स्टुडंट एंडला फॉर्म भरतो आपण ई मॅन्डेट एवढंच. पण त्याचं इंटिग्रेशन केलेलं आहे, म्हणजे जे काही स्टुडंट लॉग इन ला करतो का ते? हो. ओके, तेच बघायचं आहे आम्हाला. त्याची रोल टाईप सेटिंग आहे का रोशन काही? रोल टाईप सेटिंग आहे. E-mandate हेच ना? येस येस. ओके. याने काय होतं एक्झॅक्टली म्हणजे? चेकबॉक्स ऑन करा आणि मी पुढच्या पेजला जाऊ. Proceed. ओके. याच्यात काय होतं की जे अकाउंट नंबर आहेत ना, म्हणजे हं. आता ई मॅन्डेट कशासाठी लागतं, ज्याचं रिफंड करायचंय, ज्याचं ऍडमिशन कॅन्सल झालंय, ओके, ते आहे. ज्याचं ऍडमिशन कॅन्सल झालंय आणि त्याला रिफंड करायचे आहेत पैसे. सॉरी तर त्याच्यात काय होतं की इथं आपण काय करतो, व्हॅलिडेशन करून घेतो. ओके. हे इथं तुम्हाला काय असतं, अकाउंट नंबर, IFSC कोड आणि त्याचा मोबाईल नंबर आणि जे बँक आहे, जे बँकेचे जे हा. डिटेल रिफंड डिटेल्स. कन्फर्म करतो. ओके. बँक कडून व्हेरीफाय होतं ते. ओके, हे बँकेकडनं पण व्हेरीफाय होतं. हा, आणि हे कन्फर्म होतं आणि कन्फर्म झालं की मग ते काय करतात, इकडचा डेटा घेतात हम्म. आणि रिफंडला टाकून देतात. म्हणजे मग त्यांना माहित असतं की अरे हा करेक्ट आहे. हम्म. म्हणजे जे अकाउंटचे डिटेल यांनी प्रोव्हाइड केलेले आहेत, जे मुलाने प्रोव्हाइड केले ते करेक्ट आहेत, तर आपण त्याला रिफंड करू शकतो. रिफंडचं पण आहे, पण इथं हे पण दिलंय सर, वी ऍग्री टू पे द फीज इन इन्स्टॉलमेंट युझिंग ई-मॅन्डेट फॉर्म. We understand that we are responsible to maintain sufficient balance on the date for fees installment due. हा, आता हे रिकन्सिलेशन साठी पण युज करतो. आता याच्यात काय होतं सर, की आपण VIIT काय करतं, आता मुलांकडून फीज पार्ट पेमेंट मध्ये घेतो ना, इन्स्टॉलमेंट मध्ये. बरोबर. तर त्यांच्याकडून एक अश्युरिटी घेतो की तुम्ही ई मॅन्डेट कंपल्सरी भरा. कारण की जे डिटेल्स असतात ना, तर ते मिनिमम जो एक थ्रेशोल्ड जो बॅलन्स असतो ना, तो त्यांना मेंटेन करावा लागतो तिथं. नाही, So पण एक हे आहे. कुठल्या Roll type केस मध्ये, setting. म्हणजे इथून आपण घेतलं ठीक आहे, एक मिनिट, रोल टाईप सेटिंग मध्ये जा ना सर. रोल टाईप हा. सेटिंग मध्ये जा, येस. अकाउंट्स मध्ये. हा, तर ही जी आहे ना, ही एक लिमिट जी आहे, ई मॅन्डेट कस्टमर मॅक्सिमम अमाउंट should mention here and amount should be. याचं काय माझं होतं, अंडरस्टँडिंग तेवढं आहे, त्याप्रमाणे जे लोन किंवा EMI पेमेंट्सने जो कोणी फी भरतोय, त्याच्या अकाउंटला स्टँडिंग इन्स्ट्रक्शन सेट होतं, त्याच्यासाठी मॅक्झिमम किती करता येईल त्याच्यासाठी, असं मला तरी वाटतंय. करेक्ट आहे सर. मॅन्डेट जे आहे ना सर, येस. हे मॅन्डेट आपण त्यांच्याकडून म्हणजे आपण काय EMI डिडक्ट मारणार इन्स्टॉलमेंट मध्ये. हा, बरोबर. तर तो Yes. EMI पडताना ते ई मॅन्डेट म्हणजे काय आहे की तुमच्या अकाउंट वरती ऑपरेशन करायला परमिशन देतोय आपण त्या. परमिशन देतोय. बरोबर. मग ती जी काय अमाऊंट त्यांनी सांगितलेली इन्स्टॉलमेंटची, येस, ती डिडक्ट होणार. त्या Correct. मॅन्डेट त्यांनी ऍग्री केलं म्हणजे तो युजर ऑथेंटिकेट करतोय की तुम्ही त्या डेटला त्या वेळेला तिथं ती अमाऊंट डिडक्ट करून घेऊ शकता ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन. येस, जसं आपलं समजा तुम्ही SIP ओपन केलं करेक्ट. हा, म्युच्युअल फंडाचं, तर त्यामध्ये आपण एक मॅन्डेट देऊन टाकतो की माझ्या Yes. अकाउंट मधून मंथली हे डिडक्ट व्हावं, किंवा लोन Yes. घेतलं होम लोन. ऍक्च्युली जेव्हा झील मध्ये बिल डेस्क इंटिग्रेट केलं ना सर, तेव्हा मला आठवतंय तुम्हीच हे सांगितलं होतं. येस, की पे विथ बिल डेस्क केल्यावर जर EMI फॅसिलिटी असेल, आपली मीटिंग बिल डेस्क सोबत झाली होती, तर EMI पण जर करायचं असेल तर मॅन्डेट लागेल असं त्यांनी सांगितलं होतं, मला तेवढं आठवतं. मॅन्डेट लागतं त्या ठिकाणी. जेव्हा आपण कुठल्याही बँकेत लोन करतो ना, तर त्या बँकेत हम्म. लोन करण्यासाठी ई मॅन्डेट आपण करतो. ते काहीतरी करतोच, हा. ₹51 चार्जेस आपले पे करावे लागतात. येस.
म्हणजे हे दोन वे होते सर, एक तर तुमचं इन्स्टॉलमेंटचं होतं आणि रिकन्सिलेशन, हा म्हणजे रिफंड साठी अकाउंट व्हेरिफिकेशन पण आहे आणि EMI पेमेंट्स ने पण सेट करता येईल. येस येस करेक्ट. ओके, चालेल, थँक्यू. ओके, सो दीज आर सम रोल टाइप सेटिंग्स दॅट वी हॅव गॉन थ्रू. इकडे काही एक्स्ट्रा आहे का बघू आपण. येस, एक इज आपण मॅन्डेट सर अप्लिकेबल व्हाईल फिलिंग कॅन्सल ऍडमिशन फॉर्म. अजून एक होतं सर, आपण झीलला विदाउट लॉग इन एक फेस पेमेंट एक केलेलं आहे. येस येस, ते त्याचं पण role दाखवतो type सर. setting आहे. येस, इथे अजून एक रोल टाइप सेटिंग आहे, इज मॅन्डेट अप्लिकेबल व्हाईल फिलिंग कॅन्सल ऍडमिशन फॉर्म. यहाँ पे जो रोशन सर ने अभी बताया सेम कंसेप्ट है. स्टूडेंट अगर कैंसिल एडमिशन करता है तो उसका रिफंड जो अकाउंट में करना है उसको मैंडेट फिल करके देना पड़ेगा. तो दोनों यूज है मैंडेट के. देन एक्सेप्ट रेगुलर फीस पेमेंट फॉर कैंसिल एडमिशंस. रोशन सर, इसका कुछ यूज है क्या? एक्सेप्ट रेगुलर फीस पेमेंट फॉर कैंसिल एडमिशन. एक्सेप्ट रेग्युलर फीस सर, आयडिया नाही बरं का याच्याबद्दल पण. Then Just काय synchronize करा ना account रोशन, data to tally. याच्या रिलेटेड ना कोमल कडून एकदा क्लेरिफिकेशन घेऊन टाका ना काय येस सर येस Yes, सर, मी yes. प्रत्येक रोल टाईपचं आहे ना एक मिनिंग आणि त्याचं एक डॉक्युमेंट. वाय इट इज युज्ड आणि असेल ते एक डॉक्युमेंट शेअर केलं तर बरं राहील, म्हणजे सगळ्यांना उपयोगाला होईल. येस Yes, येस yes. बाकी त्याच सेटिंग या दोन आय थिंक मॅन्डेट रिलेटेडच आहेत परत. ओके, वन रोशन, मोर facility we have given to this college, that is Zeal. Student can pay their fees directly without login to their account, without login to their ERP account. So for that we have set that particular link. I'll just demonstrate it. This is learner login URL for this college, Zeal Institutes. इस लॉगिन पेज पे, स्टूडेंट के लॉगिन पेज पे यहाँ पे एक क्विक पे का ऑप्शन हमने दिया है. तो जैसे स्टूडेंट क्विक पे पे क्लिक करेगा, स्टूडेंट को उसका PRN नंबर यहाँ पे एंटर करना है. तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे PRN एंटर करेंगे और फेच करना है उसको. हमने अभी जो स्टूडेंट का देखा था वही देखेंगे, सेम वन. We will enter that number here. Yes, and we will click on fetch fees. हमने यहाँ पे कोई लॉगिन नहीं किया है, हमने सिर्फ लर्नर URL पे जो क्विक पे का लिंक है यहाँ पे क्लिक किया है, फिर PRN एंटर किया, फेच फीस. फेच करने के बाद यहाँ पे लिस्ट आ जाता है कि उसका कितना फीस उसका ड्यू है. सिंपली स्टूडेंट यहाँ पे पे फीस पे क्लिक करेगा and he will see the payment options, and student will pay the fees and receipt will be generated automatically. So without login to the ERP account, student can pay the fees. Actually इस कॉलेज ने उसका यूज थोड़ा अलग से किया है. उनका जो कॉलेज का वेबसाइट है, कॉलेज वेबसाइट पे उन्होंने डायरेक्टली फीस पेमेंट का फैसिलिटी यहाँ पे दिया है, पे फीस. तो पे फीस पे जैसे स्टूडेंट जाएगा तो यहाँ पे उसको पहले इंस्ट्रक्शंस दिखेंगे, अगेन वो प्रोसीड करेगा, क्लिक हियर फॉर फीस पेमेंट. जैसे वो फीस पेमेंट पे जाएगा वो हमारे क्विक पे के पेज पे ही आता है. यहाँ पे फिर से वो नंबर एंटर करेगा, फेच फीस, और यहाँ से पेमेंट कर सकता है. सो दे हैव शोन दैट यू कैन पे द फीस फ्रॉम आवर कॉलेज वेबसाइट इटसेल्फ. See, many colleges, student does not frequently logs into ERP, or even they don't know how to log into ERP. Yes. So for such a colleges or such cases, we implemented this functionality. Okay, so if student don't know how to log in and just want to pay fees, they can use this functionality. हाँ सर. Yes, Roshan. सर आता तेच एक डिस्कशन होतं इव्हेंट बद्दल. इव्हेंटची फीज आहे ना, मुलांची रिसिप्ट जनरेट होत नव्हती. बरं ते हा आपण याच्यात हे करू शकतो का उमेश सर, म्हणजे की इव्हेंट फीजला आता जी सरांनी दाखवलं पे फीज विदाउट लॉग इन करताना, तसं इव्हेंटला करू शकतो का?
इव्हेंटला करता येईल, पण इव्हेंटला जर आउटसाइड स्टुडंट असतील तर ते नाही, कारण त्यांचं ते तर नाही सगळी करता माहिती येणार. द्यायची लागेल. नाही नाही, आउटसाइडला तर आपण तर त्याला वेगळं लिंक देतो, लॉग इन हा. करून साइन अप करून देतो. पण जो आपला जो इनसाइड स्टुडंट आहे, म्हणजे VIT चा जो बरोबर. स्टुडंट, त्याला जर का क्विक पेचं लिंक दिला आणि इव्हेंटची फीस त्याने पेमेंट केला, तर पॉसिबल आहे का असं? तसं करता येऊ शकतं ना, काही प्रॉब्लेम नाही त्याच्यामध्ये, आणता येईल ते. पण ठीक आहे ते सर. प्रॉब्लेम काय आहे ना त्याच्यामध्ये, आता इथं मुलाचं हे सगळं सेट आहे हम्म. की तो समजा इंजिनिअरिंगच्या सेकंड इयरला आहे तर त्याचं फी स्ट्रक्चर मास्टर हे ते सगळं सेट केलेलं आहे इथं. येस. त्यामुळे नुसत्या GR नंबरनी ते कळतंय. पण आता इव्हेंट मध्ये काय मल्टिपल इव्हेंट आहे, समजा बरोबर आहे. कुठं आता क्रिकेट आहे, डान्स आहे, कुठं काही कॅरम आहे, तर आता त्या इव्हेंटची फीस, पार्टिसिपेशन फीस वेगवेगळी आहे. मग त्याच्यात परत मग त्याला कुठला सिलेक्ट करायचा, ते सगळं म्हणजे ते थोडं सगळं अवघड इथे आहे. द्यावं लागेल. येस. हाँ, इवेंट वाला थोड़ा अवघड है असं. पूरा फ्लो यहाँ पे देना पड़ेगा. स्टूडेंट PRN एंटर करेगा, फिर उसको इवेंट दिखेंगे, फिर वो सिलेक्ट करेगा, वो सब देना पड़ेगा आई थिंक यहाँ पे. हाँ, म्हणजे तो पूर्ण वो जो पूरा फ्लो है वो इधर देना पड़ेगा विदाउट लॉगिंग. येस. म्हणजे आता जो मेन थोडा इव्हेंट मुश्किल आहे. करंडक, आणि त्याच्या अंडर 56 सब इव्हेंट आहेत. हा, मग प्रत्येकाची ते फीस वेगळी आहे. मग ते गडबड होते. इथं कसं फिक्स बॅटिंग आहे, मला फिक्स फीस आहे, ती माहिती आहे सिस्टीमला तुला किती फीस आहे. तसं इव्हेंट मध्ये ते थोडं माहित नाही, ते थोडं कॉम्प्लेक्स होऊन जाईल. ठीक आहे, मला वाटतं उद्या सर बोलतीलच पवार सर ते. येस येस जर का इकडनं पॉसिबल असेल तर मग इकडनं करायला देऊया. येस येस. चालेल. येस. अभी मैंने जिस स्टूडेंट को फीस सेट किया था 100 रुपीज, आई विल जस्ट मेक दैट 0, नहीं तो उसका आउटस्टैंडिंग रह जाएगा. ओके. So these are some of the role type settings that we have covered. कल हमने रेगुलर पेमेंट का जो एडमिशन फीस पेमेंट का जो फ्लो है वो भी देखा था. तो एडमिशन फीस का पूरा हमने देख लिया है अभी. टुडे वी विल ट्राई टू कवर एडॉक फीस एंड इवेंट फीस एज वेल एज स्कॉलरशिप, मैनुअल रिसिप्ट्स और कैंसिल रिसिप्ट कैसे करते हैं, आई थिंक वो कल हुआ ही था. नाउ आई विल गो विद द एडॉक फीस. तो एडॉक फीस बेसिकली क्या होता है, एडमिशन फीस छोड़ के बाकी जो भी अदर फीस है, लाइब्रेरी फाइन है, चेक बाउंस चार्जेस है, ऐसे अलग अलग डिफरेंट फीस स्टूडेंट से लेने पड़ते हैं. डुप्लीकेट आई कार्ड के लिए कुछ फीस लेना है किसी कॉलेज को, या फिर स्टेशनरी का कुछ फीस लेना है स्टूडेंट से. तो ऑल सच काइंड ऑफ फीस वी कैन सेट इन द एडॉक एंड वी कैन टेक दैट फीस फ्रॉम द एडॉक फीस पेमेंट. गोकुल सर, यस. व्हाट आई वुड रिक्वेस्ट, ये दिस एडॉक फीस या इवेंट वाला Yes. या जो अदर फीस है, that I think we should cover up in a different session Okay. because it will take some time. Yes, it will take time. Okay. So instead of that, can we just demonstrate the reports related with the fees collection and Yes. all those things? Yes. So that would be better. Yes. Okay. So we will move with the reports. So whatever the fees payment is taken, that accountant has to submit some kind of reports, or they have to deal with some reports daily. So जो भी रिपोर्ट्स हम देखेंगे, सबसे पहला तो अकाउंट रिपोर्ट. अकाउंट रिपोर्ट में इस कॉलेज में अकाउंट रिपोर्ट में सब रिपोर्ट्स हमने सेट किए हैं. लिंक्स या फिर उनका पोजीशन अलग हो सकता है, बट रिपोर्ट्स अवेलेबल है सब. सबसे पहले हम देखेंगे रोल कॉल विथ स्टूडेंट फीस एंड स्कॉलरशिप फीस डिटेल. तो ये एक डिटेल रिपोर्ट है. मुझे रोल नंबर वाइज देखना है कि इस पर्टिकुलर एकेडमिक ईयर में, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए डिवीजन से मैं ए डिवीजन का रिपोर्ट लेना चाहता हूँ. तो आई विल जस्ट फेच दैट रिपोर्ट फॉर दिस पर्टिकुलर फिल्टर्स. तो यहाँ पे डिटेल क्या क्या आता है आप देखिए. इसमें स्टूडेंट का PRN नंबर, DTE नंबर आता है, उसका एक्चुअल फीस कितना है यहाँ पे, वो अमाउंट यहाँ पे दिखता है. स्टूडेंट ने अब तक कितना पे किया है, उसका एक्चुअल फीस यहाँ पे देखिए 63,000 है, बट स्टूडेंट ने एक्चुअल पे कितना किया है, सिर्फ 30,000 पे किया है.
फिर उसको स्कॉलरशिप कितना है और अब तक उसका स्कॉलरशिप कितना आया है, कॉलेज के पास कितना अमाउंट आया है उसका, तो वो यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये अमाउंट कब अपडेट होगा, इधर से स्कॉलरशिप रिसिप्ट जब जनरेट होगा स्टूडेंट का, तो स्कॉलरशिप का ये जो कॉलम है दैट विल बी अपडेटेड। फिर उसका टोटल फीस कितना हो जाता है, मतलब स्टूडेंट फीस प्लस स्कॉलरशिप अमाउंट दोनों मिला के टोटल फीस इतना हो जाता है। अब स्टूडेंट के पास कितना ड्यू है या फिर कितना एक्सेस है वो यहाँ पे दिखेगा आपको। अब इसका 63,000 फीस है, उसने उतना पे किया है, तो स्टूडेंट के साइड में जीरो अमाउंट पेंडिंग है, इसलिए यहाँ पे जीरो दिखाया है। बट सोशल वेलफेयर का जितना भी पेमेंट है, मतलब स्कॉलरशिप अमाउंट जो है वो अभी तक कॉलेज को नहीं मिला है, इसलिए यहाँ पे अमाउंट आपको जीरो दिखेगा। रिसीव्ड फ्रॉम सोशल वेलफेयर, ये जीरो आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस स्टूडेंट ने सिर्फ 30,000 पे किया है, तो उसका रिमेनिंग अमाउंट यहाँ पे आपको ड्यू में दिखाएगा। सिमिलरली अगर किसी का ज्यादा पेमेंट आप लेते हैं तो यहाँ पे माइनस में दिखाएगा पेमेंट, माइनस मीन्स उसका एक्सेस पेमेंट कॉलेज के पास आया है। तो इसमें उस स्टूडेंट का पूरा डिटेल एडमिशन फी के रिलेटेड आप देख सकते हैं, स्टूडेंट के साइड कितना पेमेंट है, कितना पे किया है, स्कॉलरशिप कितना आना चाहिए और कितना आया है अभी तक, ये पूरा डिटेल रिपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड इट इज डिवीजन वाइज, द रिपोर्ट इज डिवीजन वाइज। इस रिपोर्ट में कहीं पे भी एडिट डिलीट ऐसा कुछ फैसिलिटी नहीं है। तो इस पर्टिकुलर कॉलेज का डिमांड था कि हर एक क्लास टीचर के लॉगिन में फी डिटेल्स दिखने चाहिए स्टूडेंट के, तो हमने ये सेम रिपोर्ट हर एक क्लास टीचर के टैब में अवेलेबल करके दिया है। एकेडमिक्स में आप देखेंगे क्लास टीचर, तो क्लास टीचर के टैब में सेम रिपोर्ट यहाँ पे हमने अवेलेबल करके दिया है। सॉरी, रोल कॉल में यहाँ पे एकेडमिक्स में सबको रोल कॉल दिखता है और रोल कॉल में सेम रिपोर्ट यहाँ पे अवेलेबल किया है। देन नेक्स्ट रिपोर्ट दैट वी विल डिस्कस, प्रोग्राम वाइज फी कलेक्शन समरी। I'll just go through that report. यहाँ पे मैं एक प्रोग्राम जस्ट सिलेक्ट करता हूँ, सॉरी, सेम रिपोर्ट एक्चुअली, यहाँ से भी हम डिवीजन ले सकते हैं। आई विल जस्ट टेक बैचलर्स मैकेनिकल सेकेंड ईयर एंड डिवीजन एंड फेच। सो फिल्टर सेम है जो पहले रिपोर्ट में था, यहाँ पे डिफरेंस आप देख सकते हैं। हमने जो प्रोग्राम सिलेक्ट किया है मैकेनिकल, फिर ईयर सिलेक्ट किया है, फिर डिवीजन सिलेक्ट किया है, तो इस पर्टिकुलर फिल्टर के लिए डेली का कलेक्शन आपको यहाँ पे दिखेगा। 10 अगस्त को इस पर्टिकुलर डिवीजन से किसी ने पेमेंट किया है क्या, तो यहाँ पे काउंट आ जाएगा कितना पेमेंट किया है। नंबर पे क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट के डिटेल्स भी हमें मिल जाएंगे और यहाँ पे क्यूमुलेटिव काउंट भी आपको मिल जाता है स्टूडेंट का। सो विद दिस वी कैन फेच प्रोग्राम वाइज कलेक्शन। हम यहाँ पे ऑल कर सकते हैं। मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कलेक्शन देखना है इस पर्टिकुलर एकेडमिक ईयर का, आई विल जस्ट फेच इट। तो यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पूरा डिटेल आपको यहाँ पे दिख जाएगा और डे वाइज कलेक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। हर दिन कितना पेमेंट रिसीव हुआ है फॉर दिस पर्टिकुलर ब्रांच, तो ये ऑल के लिए भी हम फेच कर सकते हैं। सो बेसिकली ये डेली कलेक्शन रिपोर्ट है आपका, वो आपको यहाँ से मिलता है। अगेन आई विल गो टू द नेक्स्ट रिपोर्ट, फीस रिकवरी परसेंटेज रिपोर्ट। ये दोनों रिपोर्ट सेम ही है। इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में एडमिशन कैंसिल कंसिडर नहीं किए हैं और इसमें कैंसल्ड एडमिशन कंसिडर किए हैं, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। आई जस्ट शो दैट रिपोर्ट। बहुत सारे कॉलेजेस को स्टैटिस्टिक चाहिए होता है कि हमें अभी तक कितना फीस अप्लीकेबल है और रिसीव कितना हुआ है, इसका कुछ कॉलेजेस स्टैटिस्टिक मांगते हैं आपसे। तो फॉर दैट दिस इज वेरी यूजफुल रिपोर्ट। जो मैंने फिल्टर यहाँ पे लिया है, एकेडमिक ईयर, प्रोग्राम एंड प्रोग्राम टाइप, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फॉर ऑल ईयर्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फाइनल ईयर। इस रिपोर्ट में आपको यहाँ पे पूरा आइडिया आ जाता है कि फर्स्ट ईयर मैकेनिकल में कितने स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑन रोल कॉल, ये आपके रोल कॉल से काउंट आता है। अगर रोल कॉल में 0 है तो इधर 0 आएगा और रिपोर्ट भी आपको कुछ नहीं दिखाएगा। तो इतने स्टूडेंट्स है रोल कॉल में, इन स्टूडेंट्स का टोटल अप्लीकेबल फीस कितना है, 51 लाख रुपीज।
अब इन 94 स्टूडेंट्स में से कितने स्टूडेंट्स ने फुल अमाउंट पे किया है, पूरा फीस पे किया है? तो 71 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पूरा अमाउंट पे किया है। पार्शियली 21 स्टूडेंट है, उन्होंने पार्शियल अमाउंट पे किया है, और टोटल हो गया फिर से 92। तो 2 स्टूडेंट्स में भी कैंसल आउट हो सकते हैं। यस। देन फीस रिसीव्ड, यहाँ पे आपको परसेंटेज भी दिखाई देगा कि कितने स्टूडेंट ने फीस पेड किया है अभी तक। तो परसेंटेज में आपको दिखेगा फीस पेमेंट का। देन फीस रिसीव्ड, यहाँ पे 71 जो स्टूडेंट्स है इन्होंने फुल पे किया है, तो वो अमाउंट कितना हो गया फुल पेमेंट का? 35 lakhs। 21 स्टूडेंट्स ने पार्शियल अमाउंट पे किया है, तो वो अमाउंट कितना है? दैट इज 8.82 लाख। अगर कुछ एक्सेस पेमेंट हमारे पास आया है, एक्स्ट्रा पेमेंट, अगर इसमें से कुछ स्टूडेंट ने एक्स्ट्रा फीस भरा है, तो वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा, और यहाँ पे टोटल मिलेगा आपको। फिर फीस कलेक्शन का रेशियो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अप्लीकेबल फीस कितना था और अब तक अमाउंट कितना रिसीव हुआ है, मतलब कितना फी रिकवरी हुआ है मेरा इस पर्टिकुलर क्लास के लिए या फिर ईयर के लिए, वो परसेंटेज यहाँ पे दिखता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फीस नॉट पेड, अभी एक भी रुपए उन्होंने पे नहीं किया, 2 स्टूडेंट से, इसीलिए यहाँ पे डिफरेंस आया था, दैट यू कैन सी। सो 2 स्टूडेंट ने अभी तक एक 0 पेमेंट किया, मतलब पार्शियल में भी नहीं है वो और फुल पेमेंट में भी नहीं है, तो दोज 2 स्टूडेंट्स विल रिफ्लेक्ट हियर। रेशियो टोटल स्टूडेंट्स एंड नॉट पेड स्टूडेंट्स, मतलब परसेंटेज में चाहिए आपको कितने परसेंट स्टूडेंट्स ने पेमेंट अभी तक 0 किया है। तो 2% स्टूडेंट्स आर देयर who have not paid any amount. Then fees due, तो पार्शियली पेड जो स्टूडेंट्स है उनसे अभी कितना फीस आना बाकी है, मतलब इस 21 स्टूडेंट की तरफ से 7.79 लाख रुपीस पेमेंट पेंडिंग है, और जो 2 स्टूडेंट है उनसे 0.81 लाख मीन्स 81,000 पेमेंट पेंडिंग है, टोटल इतना है। फॉरेन स्टूडेंट्स है तो ये यहाँ पे दिख जाएगा। कैंसिल एडमिशन अगर कुछ काउंट है तो यहाँ पे दिख जाएगा, अगर उनको कुछ रिफंड दिया है तो वो भी यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। और आपको इस पर्टिकुलर सिलेक्शन के लिए डिटेल पूरा टोटल भी यहाँ पे मिलेगा, मतलब मैकेनिकल में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल कितने लोगों ने फुल फी भरा है, कितने लोगों ने पार्शियल पेमेंट किया है। सो एवरीथिंग यू विल गेट इन दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट, एंड विद दैट these numbers are clickable. You can just click on the number and you will get the details about those particular students. तो मुझे अगर पता करना है कि ये 46 स्टूडेंट्स कौन है जिन्होंने पार्शियल पेमेंट किया है, तो उनका लिस्ट भी यहाँ पे ओपन हो जाएगा along with their fee details. So this is one of the report. Then next डेली जो भी रिसिप्ट कैशियर या फिर अकाउंटेंट बनाता है या फिर ऑटोमेटिक बन जाती है, कैशियर हैज टू सबमिट कि आज कितनी रिसिप्ट बनी है, तो पूरे रिसिप्ट का रिपोर्ट उसको ऑडिट के लिए देना पड़ता है डेली का, डे वाइज। तो यहाँ पे वो रिपोर्ट अवेलेबल है, एडमिशन फीस रिसिप्ट रिपोर्ट। कोई अलग, कोई और कॉलेज में उसका नाम अलग हो सकता है। अगेन इन दिस रिपोर्ट मैंने थोड़ी देर पहले भी ये दिखाया था, फॉर ऑल प्रोग्राम्स एंड ऑल पेमेंट्स मोड आज कितना रिसिप्ट क्रिएट हुआ है दैट वी कैन फेच। तो आज जितनी भी रिसिप्ट बनी होगी वो यहाँ पे आ जाएगी टोटल। और रिसिप्ट कैसा बना है, मतलब ऑफलाइन है या ऑनलाइन, ये भी यहाँ पे पता चलेगा। मोड में अगर ऑनलाइन है दैट मीन्स दैट पेमेंट इज रिसीव्ड थ्रू गेटवे एंड रिसिप्ट इज जनरेटेड ऑटोमेटिकली। सो उसका रिसिप्ट का पूरा रिपोर्ट यहाँ पे आ जाता है कि आज कितनी रिसिप्ट जनरेट हो चुकी है। तो इट इज दिस रिपोर्ट। देन यहाँ पे एक ऑल रिसिप्ट टाइप का रिपोर्ट है। इन दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट ऑल रिसिप्ट टाइप रिपोर्ट, यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये जो 5th वाला रिपोर्ट था ये एडमिशन फी के रिलेटेड था, मतलब यहाँ पे आपको सिर्फ एडमिशन फीस जो स्टूडेंट ने पे किया है उनकी ही रिसिप्ट ये रिपोर्ट में आ जाएंगी। बट अभी अकाउंट्स मॉड्यूल में जैसे हमने देखा कि एडॉक फीस भी है, उसके बाद में स्कॉलरशिप फीस भी है, फिर मैनुअल रिसिप्ट भी है, देन वी हैव एग्जाम फीस ऑल्सो। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेमेंट्स आर देयर, इवेंट फीस भी है। तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेमेंट्स इस मॉड्यूल से हम ले सकते हैं। तो मुझे अगर ये रिपोर्ट चाहिए कि आज दिन भर हर टाइप का पेमेंट कोई भी हो, एडमिशन फीस हो, एडॉक हो, मैनुअल रिसिप्ट हो, स्कॉलरशिप हो, कोई भी हो,
बट मुझे आज कितनी रिसिप्ट बनी है टोटल, उसका अगर रिपोर्ट चाहिए, so that report we can fetch using this one, all receipt type report. So this is all receipt type report. तो इसमें आपको पूरी रिसिप्ट आ जाएंगे आज की, एंड वी कैन ऑल्सो इंक्लूड द इवेंट रिसिप्ट ऑल्सो इन दिस रिपोर्ट. अगर मुझे कैंसिल रिसिप्ट चाहिए वो भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, आज कुछ रिसिप्ट कैंसिल हुई है तो दैट वी कैन इंक्लूड. तो इसमें आपको पूरी रिसिप्ट का रिपोर्ट आ जाएगा. तो रिसिप्ट का टाइप यहाँ पे आ जाएगा. रेगुलर मीन्स ये एडमिशन फी का रिसिप्ट है. विजिटिंग लर्नर मीन्स ये मैनुअल रिसिप्ट है. इवेंट मीन्स ये इवेंट का रिसिप्ट है. सिमिलरली एडॉक का है तो यहाँ पे एडॉक आ जाएगा. एग्जाम का है तो एग्जाम आ सकता है. तो हर एक डिफरेंट टाइप की रिसिप्ट आपको इस रिपोर्ट में मिल जाएंगी. रिसिप्ट किसने बनाया है? रिसिप्ट अगर कैंसिल है तो यहाँ पे यस आ जाएगा, कैंसिल आ जाएगा. तो ये पूरा डिटेल रिपोर्ट आपको मिलेगा कि आज कितनी रिसिप्ट जनरेट हुई है या फिर उस पर्टिकुलर डेट रेंज में कितनी रिसिप्ट आज तक जनरेट हुआ है, सो दैट वी कैन फेच. यू कैन सी यहाँ पे इवेंट्स में बहुत सारे रिसिप्ट है, रेगुलर पेमेंट की बहुत सारी रिसिप्ट है. देन ये स्कॉलरशिप है, SWD मीन्स स्कॉलरशिप रिसिप्ट है. विजिटिंग लर्नर ये मैनुअल रिसिप्ट है. ये कैंसिल रिसिप्ट है. तो कैंसिल रिसिप्ट आपको रेड रेड कलर में दिखेगी, उसमें आपको ये कट भी दिखेगा. दिस इज वन रिपोर्ट. यस सर. यस तृप्ति. सर ये सब रिपोर्ट हम लोग डिसाइड करते हैं कि इतने सारे रिपोर्ट्स हमारे पास है और वो लोग हमको देते हैं क्या कि हम लोग को ये सब रिपोर्ट्स? नहीं नहीं नहीं, जब भी हम कोई कॉलेज में अकाउंट्स मॉड्यूल ऑन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये रिपोर्ट उनके लॉगिन में हम दे देते हैं. ठीक है, हाँ, दो but दे आर नॉट यूजिंग इट. ट्रेनिंग के टाइम हमें उनको बताना है कि इतने सारे रिपोर्ट्स अवेलेबल है. मोस्टली आपको क्वेरीज बाद में आते हैं, हमें ऐसा ऐसा रिपोर्ट चाहिए, मुझे आज कितनी रिसिप्ट बनी है उसका रिपोर्ट चाहिए, so that you should know कि ये रिपोर्ट हमारे पास अवेलेबल है. यस. यस See, वो this is based, estimation की सिर्फ एडमिशन फी का रिपोर्ट चाहिए हमें, तो वैसा भी अवेलेबल है. these reports are default. That means basic minimum reports are these ones. So, but Yes. if some client Yes, sir. requires some customization or some specific report, that we can give as per the requirement. ओके सर. Then this is pre-admission report. You can see एडमिशन मॉड्यूल के टाइम हमने देखा था झील के पास एक प्री एडमिशन मॉड्यूल है इंक्वायरी मैनेज करने के लिए. तो वहां पे जो स्टूडेंट्स इंक्वायरी का फॉर्म भरते हैं उनसे जो पेमेंट आता है, तो उधर कोई ऑफलाइन रिसिप्ट जनरेट नहीं होता है. स्टूडेंट ऑनलाइन ही पेमेंट करता है और रिसिप्ट भी ऑनलाइन ही जनरेट होता है. बट वो रिसिप्ट का रिपोर्ट अकाउंटेंट को चाहिए. सो दैट रिपोर्ट विल बी ऑब्टेन्ड थ्रू दिस पर्टिकुलर लिंक. यहाँ पे वो पूरा प्री एडमिशन का रिसिप्ट का रिपोर्ट आ जाएगा. रिफंड रिसिप्ट रिपोर्ट में अगर हमने कुछ रिफंड रिसिप्ट जनरेट की है, सो वो यहाँ पे आ जाएगा. भी इस कॉलेज में एक्चुअली वो यूज नहीं करते. जस्ट आई विल ट्राई इफ वो अवेलेबल है, वी कैन जस्ट चेक. आई थिंक वो नहीं है. I think VIT में है refund receipt वाला कुछ. Yes. Yes. कितना अमाउंट रिफंड हुआ है, सो दैट दे कैन. VIT मध्ये आहे का सर? रोशन VIT मध्ये आहे ना? I think आहे हा refund check. report. सर येस सर. अकाउंट डॅशबोर्ड पण सांगा. येस येस अकाउंट डॅशबोर्ड पण घेणार आहे सर. इलिजिबिलिटीचा नाही चालू. असं कसं आलं? लिंक टाकू का सर चॅट मध्ये? नाही नाही आहे. होऊन जाईल. तोपर्यंत नेक्स्ट घेतो. ऍडमिशन फीज रिकन्सिलेशन. हा, रिकन्सिलेशन एक इम्पॉर्टंट आहे. जे चालू रिपोर्ट्स आहेत तेच दाखवतोय मी. रिकन्सिलेशन में यहाँ पे दो ऑप्शन है आपको, ओल्ड एंड न्यू. सो आई विल शो जस्ट बोथ रिपोर्ट्स. से मैं सेकेंड ईयर लेता हूँ, प्रोग्राम टाइप बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग लेता हूँ, गेट रिकन्सिलेशन ओल्ड. तो यहाँ पे रिपोर्ट आपका जनरेट हो जाएगा.
डिवीजन वाइज है, तो आई डोंट थिंक वो मिलेगा रिपोर्ट हमें जल्दी. जस्ट टेक दी डेट वाइज. यस, ये रिफंड रिसिप्ट का रिपोर्ट यहाँ पे मिलता है, जो मैंने पहले बोला आपको, फीस रिफंड रिपोर्ट. तो बेसिकली इसमें जब भी स्टूडेंट को फीस रिफंड किया जाता है कैंसलेशन की वजह से, या फिर एक्सेस अमाउंट हम जब रिटर्न करते हैं स्टूडेंट को, जैसे हम पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं तो उसका रिसिप्ट बनता है, वैसे पेमेंट रिटर्न देते हैं तो उसका भी रिसिप्ट हम यहाँ पे जनरेट करते हैं सिस्टम में, उसको रिफंड रिसिप्ट बोलते हैं. तो जितनी भी रिफंड की रिसिप्ट हमने जनरेट की है, तो दैट पर्टिकुलर रिपोर्ट इज फेच्ड यूजिंग दिस वन, फीस रिफंड रिपोर्ट. देन रिकंसिलेशन. रिकंसिलेशन में बेसिकली क्या है, अब दो है टाइप्स, एक ओल्ड और एक न्यू है. तो ओल्ड वाला जो रिकंसिलेशन है, यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, ब्रांच दिखती है AIDS, और हमारी जो फीस कैटेगरी है DSC EWS DSC OBC EBC, ये हमारी फीस कैटेगरी है, कल हमने लिखा था. तो इस पर्टिकुलर फीस कैटेगरी के लिए कितने स्टूडेंट्स है, उनका उन्होंने कितना अमाउंट पे किया है अभी तक, एक्सपेक्टेड कितना था, और समाज कल्याण से कितना आना है, सोशल वेलफेयर से, फिर यूनिवर्सिटी फी एंड हाफ फ्रॉम समाज कल्याण, आई थिंक ये स्कॉलरशिप रिलेटेड ही है. तो ये सब डिटेल यहाँ पे आता है. आई थिंक ओल्ड रिपोर्ट अभी यूज नहीं करते हैं कोई. आई जस्ट शो द न्यू रिपोर्ट ऑल्सो, गेट रिकंसिलेशन न्यू. इसमें थोड़ा डिटेल आपको मिलेगा. फीस कैटेगरी यहाँ पे दिखती है आपको, से DSC EWS इज फी कैटेगरी. फिर इस पर्टिकुलर कैटेगरी में टोटल फीस कितना एक्सपेक्टेड है, 1,13,000. इस कैटेगरी के लिए कितने स्टूडेंट्स अप्लीकेबल है, मतलब ये कैटेगरी कितने स्टूडेंट को अप्लाई किया है हमने, तो 21 स्टूडेंट है. तो इसमें ट्यूशन फी कितना आना चाहिए स्टूडेंट से, अब तक टोटल अमाउंट कितना रिसीव हुआ है, डेवलपमेंट फी कितना है स्टैंडर्ड इस पर्टिकुलर कैटेगरी का, अब तक टोटल अमाउंट कितना आया है इन 21 स्टूडेंट से, यूनिवर्सिटी फी कितना है 2,600. तो ये 21 स्टूडेंट ने अभी तक कितना पे किया है, 56,000 पे किया है. तो ये फीस कंपोनेंट वाइज आपको यहाँ पे डिटेल रिपोर्ट मिलेगा, फीस कंपोनेंट वाइज ऑल्सो एंड फीस कैटेगरी वाइज ऑल्सो. अगर आपको पता करना है कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स है जो पूरा अमाउंट फुल फीस पे करते हैं, तो आप देखिए ओपन का रिपोर्ट आप निकालिए, 196 स्टूडेंट्स है जो फुल फीस पे करते हैं. ऐसे कितने स्टूडेंट्स है जो सिर्फ डेवलपमेंट फी पे करते हैं, तो SBC VJNT ये कैटेगरीज के लिए सिर्फ डेवलपमेंट फी अप्लीकेबल है, वो ट्यूशन फी नहीं भरते, तो आप ये रिपोर्ट दे सकते हैं. सो दिस इज बेसिकली रिकंसिलेशन, कि हर एक कैटेगरी टाइप के लिए और फीस कैटेगरी के लिए अभी तक कितना पेमेंट रिसीव हुआ है, जो आपके फीस कंपोनेंट्स के हेड है, अकॉर्डिंग टू दैट. सो दैट इज अ रिकंसिलेशन रिपोर्ट. देन डेली फीस कलेक्शन समरी, आई थिंक ये हमने देखा है अभी. नहीं, वो प्रोग्राम वाइज था, यहाँ पे प्रोग्राम का फिल्टर नहीं है. इसके पहले हमने एक रिपोर्ट देखा था यहाँ पे प्रोग्राम वाइज कलेक्शन, तो यहाँ पे प्रोग्राम ईयर डिवीजन सब फिल्टर से. और डेली कलेक्शन समरी जो है, डेली कलेक्शन समरी में ज्यादा फिल्टर्स नहीं है, सिर्फ एकेडमिक ईयर एंड डेट रेंज इतना ही आप सिलेक्ट कर सकते हैं. जो मैं डेट रेंज लेता हूँ फ्रॉम फर्स्ट, नो डेटा फाउंड, आई थिंक ये वर्किंग नहीं है, ठीक है वर्क नहीं करता है. हाँ यस वर्क करता है, वो रेंज वर्क नहीं कर रहा है यहाँ पे, बट द रिपोर्ट इज वर्किंग. आपको पूरा फेच करना पड़ेगा फॉर दिस एकेडमिक ईयर. सो पूरा कलेक्शन रिपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, हर दिन कितना पेमेंट रिसीव हुआ है, कितने स्टूडेंट्स ने पे किया है, और क्यूमुलेटिव काउंट भी यहाँ पे आ जाएगा. और उस दिन जो स्टूडेंट ने पेमेंट किया है वो कौन है एग्जैक्टली, दैट यू कैन सी जस्ट क्लिकिंग द नंबर. तो अगर आपको ऐसा ट्रैक करना है कि हाँ 19 अगस्त को कितने लोगों ने पेमेंट किया था, एडमिशन फीस भरा था, आपको ये ट्रैक करना है, सो यू कैन जस्ट सिंपली फेच दिस डेली कलेक्शन समरी. और उस दिन कितने लोगों ने पेमेंट किया था आपको पता चलेगा, वो कौन है वो भी आपको पता चलेगा, along with the amount and cumulative amount. Then fees category count report, this we have developed recently. यहाँ पे
तो मैं सेकंड ईयर लेता हूँ, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिकल एंड फेच डिटेल्स। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, सेकंड ईयर के लिए जो हमने फिल्टर सिलेक्ट किया है, हम उस पर्टिकुलर फिल्टर के लिए ये डिटेल रिपोर्ट आपको मिलेगा कैटेगरी वाइज। यू कैन सी अगेन मेल स्टूडेंट्स एंड फीमेल स्टूडेंट्स, मतलब ओपन का फीस कितने स्टूडेंट्स को अप्लीकेबल है, मेल स्टूडेंट्स कितने हैं, फीमेल स्टूडेंट्स कितने हैं, तो ये पूरा डिटेल रिपोर्ट आपको यहाँ पे आता है। आई थिंक ये VCACS के लिए डेवलप किया था। राइट राइट। यस, तो वहां पे वो काउंट आ जाएगा, हर एक फीस कैटेगरी में कितने स्टूडेंट्स है, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, तो वो यहाँ से आपको मिल जाएगा। देन कंपोनेंट वाइज रिपोर्ट इज देयर। कंपोनेंट वाइज रिपोर्ट इज बेसिकली सिलेक्शन रिपोर्ट। आप डिसाइड करोगे कि आपको क्या क्या चाहिए। से मैं डिसाइड करता हूँ रेंज फ्रॉम 1 Feb टू टुडे, मुझे क्या क्या चाहिए, आप ट्यूशन फी और डेवलपमेंट फी कितना आया है, फिर किसने किसने भरा है, मुझे PRN नंबर चाहिए, नेम चाहिए और क्लास चाहिए, उसका रिसिप्ट का नंबर मुझे चाहिए, एंड आई विल जस्ट फेच इट। सो आई विल गेट दैट रिपोर्ट कि दैट पर्टिकुलर इन दैट पर्टिकुलर डेट रेंज कितने स्टूडेंट ने ट्यूशन फी और डेवलपमेंट फी पे किया है, उनका रिसिप्ट नंबर क्या है, उनका क्लास क्या है, ये सब डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कॉन्फ़िगरेबल है, मतलब वो कुछ अलग मांगते हैं, you can say that you can use this particular report। जो चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और that particular report will be shown over there, but this is only for admission fees। ad hoc या फिर कोई अलग फी है तो उसके लिए ये रिपोर्ट वर्क नहीं करेगा, it is only for admission fees। These are some of the reports। I think we have pending fees report also। Just one more thing, sir. Yes. Have we discussed about importing the pending fees or backlog No, fees? not it। Okay. Yes, I will just cover the reports and I will discuss that। Okay. Yes, we also have this role account section। इसमें PDC रिपोर्ट एक है, कल हमने देखा था, हर एक इंस्टॉलमेंट के लिए हम PDC ऐड कर सकते हैं, PDC के डिटेल पोस्ट डेटेड चेक, तो उसका रिपोर्ट यहाँ पे मिल जाएगा आपको। लर्नर वाइज चाहिए, स्टूडेंट वाइज, तो स्टूडेंट वाइज भी आपको यहाँ पे मिलेगा। फिर कोई कॉलेज आपको ये भी पूछ सकता है कि अभी स्टूडेंट्स हमारे पास नोड यूज करने के लिए आते हैं और मुझे देखना है कि उसका पूरा 4 साल का रिकॉर्ड क्या है, अभी रिसेंटली उसने पूरा पेमेंट भरा है नहीं भरा है, क्योंकि फीस पेमेंट के पेज पे जाके वो सिर्फ एक ही इसका एक्सेस कर सकता है। तो लेजर में आपको पूरा डिटेल यहाँ पे मिलता है, यू जस्ट हैव टू एंटर द PRN नंबर, तो उसको पूरा हिस्ट्री यहाँ पे आ जाता है। फर्स्ट ईयर में कब था स्टूडेंट, सेमिस्टर 1 में रोल नंबर क्या था, 2 में रोल नंबर क्या था, फिर उस ईयर में उसको एप्लीकेबल फी कितना है स्टूडेंट को और उसने कितना भरा है, स्कॉलरशिप कितना एप्लीकेबल है और उसने कितना भरा है, ये पूरा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। अगर कोई और स्टूडेंट लेते हैं, यू कैन सी स्टूडेंट को कितना एप्लीकेबल है, उसने कितना दिया है, स्कॉलरशिप कितना आना चाहिए 44,000, कितना स्कॉलरशिप अभी रिसीव हुआ है, तो इतना स्कॉलरशिप रिसीव हुआ है, और कुछ ओपनिंग बैलेंस भी है क्या, ये मैं बाद में बताता हूँ ओपनिंग बैलेंस क्या है। तो ये पूरा डिटेल हिस्ट्री आपको यहाँ पे रिपोर्ट मिल जाएगा। अब बेसिकली ये ओपनिंग बैलेंस क्या है ये भी अभी बता देता हूँ मैं। फॉर द सेम स्टूडेंट इन एडमिशन फीस और स्टूडेंट फीस, जहाँ पे हम पे एडमिशन फीस करते हैं, ऑन दैट पेज यू माइट हैव नोटिस्ड वन कॉलम रिसीवेबल ड्यू। तो रिसीवेबल ड्यू में यहाँ पे आप देखिए सेकंड ईयर में 28,000 अमाउंट पेंडिंग है ये, और ये उसका एक्चुअल फी है, बट रिसीवेबल ड्यू में एक्स्ट्रा अमाउंट डाला है मैंने 28,000। बट आप नीचे देखोगे यहाँ पे नहीं है, वो रिसीवेबल ड्यू यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, सिर्फ सेकंड ईयर में दिख रहा है आपको। बट ऐसा क्यों है, इट इज बिकॉज इस कॉलेज ने जब ERP परचेज किया था फ्रॉम अस, तो ये स्टूडेंट उस टाइम में सेकंड ईयर में था, ही वाज इन सेकंड ईयर,
और फर्स्ट ईयर का उसका जो भी फीस डिटेल है वो कोई अलग सॉफ्टवेयर में था उनका, से उसको 56,000 फीस फर्स्ट ईयर में भी था, बट उसने पूरा पेमेंट किया नहीं था उस वक्त। अब वो सेकेंड ईयर में ऑलरेडी आया है, बट उसका कुछ पेमेंट बाकी है फर्स्ट ईयर का। अब क्योंकि वो हमारे सिस्टम में फर्स्ट ईयर में है नहीं, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर भी नहीं दिखाएगा, बट दैट पर्टिकुलर कॉलेज विल आस्क यू दैट हमें वो जो बैकलॉग उसका पेमेंट है फर्स्ट ईयर का, वो तो सिस्टम से अभी लेना है, तो वो कहाँ पे हम एंटर करेंगे? सो दैट वी हैव टू सेट इन द रिसीवेबल ड्यू। तो ये रिसीवेबल ड्यू में हम वो पेमेंट यहाँ पे सेट कर सकते हैं, एंड वी कैन ऑल्सो इंपोर्ट दिस पर्टिकुलर रिसीवेबल ड्यू। हम ये इंपोर्ट भी कर सकते हैं। वी हैव फैसिलिटी टू इंपोर्ट दिस रिसीवेबल ड्यू ऑल्सो। I'll just show that particular link how we can import. Additionally, as Roshan sir said, we have to discuss the account dashboard also. I'll just show you the account dashboard. हर एक कॉलेज के लॉगिन में अकाउंट्स में अकाउंट डैशबोर्ड है। यहाँ पे ये अकाउंट का डैशबोर्ड दिया है। सो डैशबोर्ड बेसिकली क्या होता है, यहाँ आपके स्टूडेंट का पूरा हिस्ट्री आपको मिलेगा। चलो ये फिल्टर से फेच करता हूँ। यस, सो यू कैन सी द कलर कोडिंग ऑल्सो। अगर स्टूडेंट का पूरा पेमेंट आया है, पूरा मीन्स स्टूडेंट का भी और स्कॉलरशिप का भी अगर आया है, दैट विल बी शोन इन ग्रीन। अगर किसी स्टूडेंट ने उसका खुद का फीस पेमेंट पूरा पे किया है बट स्कॉलरशिप नहीं आया उसका, तो येलो में दिखाएगा। अगर स्टूडेंट का खुद का पेमेंट पेंडिंग है तो ये ऑरेंज कलर में दिखाएगा। अगर स्टूडेंट का खुद का फीस भी पेंडिंग है, स्कॉलरशिप भी नहीं आया है, तो ये ब्लू में दिखाएगा। और फी स्ट्रक्चर ही हमने अप्लाई नहीं किया अभी तक, मतलब फीस कैटेगरी ही सेट नहीं है किसी को, तो वो रेड कलर में दिखाएगा। तो यहाँ पे पूरे डिटेल्स आपको दिखेंगे। एक स्टूडेंट का हम डिटेल देखते हैं। पीआरएन नंबर, उसका डीटी का एप्लीकेशन नंबर आएगा, नेम एज पर आधार कार्ड उसका क्या नेम है, उसका स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन नंबर भी यहाँ पे आएगा। देन स्टूडेंट फीस कैटेगरी, उसको कौन सा फीस स्ट्रक्चर अप्लाई किया है, फीस स्टूडेंट को कितना भरना है, उसको कुछ कंसेशन दिया है क्या, अगर दिया है तो वो अमाउंट यहाँ पे दिखेगा। अब तक उसने कितना पेमेंट किया है। रिसीवेबल ड्यू मतलब अभी जो हमने देखा प्रीवियस आउटस्टैंडिंग कुछ है क्या, तो वो भी डैशबोर्ड में आपको यहाँ पे दिखता है कि रिसीवेबल ड्यू कुछ सेट किया था क्या हमने उसको, और वो उसने पे किया है कि नहीं किया है। अब तक टोटल पेमेंट कितना किया है, स्टूडेंट से कितना ड्यू है। देन यहाँ से स्कॉलरशिप डिटेल स्टार्ट हो जाते हैं। फीस रिसीवेबल फ्रॉम सोशल वेलफेयर, अभी कितना रिसीव हुआ है, टोटल फीस अभी कितना आया है, ये भी आपको यहाँ पे दिखेगा। ड्यू फ्रॉम सोशल वेलफेयर कितना है, टोटल फीस ड्यू कितना है, और यहाँ पे पूरे इंस्टॉलमेंट डिटेल्स आ जाएंगे स्टूडेंट के, जितने भी उसको इंस्टॉलमेंट हमने दिए हैं, 1 2 3 4 जितने भी है, सब इंस्टॉलमेंट्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। जो पेड इंस्टॉलमेंट है दैट विल बी शोन इन द ग्रीन, व्हाइट मीन्स इट इज येट टू बी पेड। देन स्टूडेंट फॉरेन नेशनल है क्या, उसका कैटेगरी कौन सा है, कोटा क्या है, सीट टाइप क्या है, स्कॉलरशिप टाइप क्या है, उसका एडमिशन ईयर कौन सा है, देन प्रोग्राम, ब्रांच, ईयर, डिवीजन, रोल नंबर, सब डिटेल्स आते हैं अलॉन्ग विथ ईमेल्स। और यहाँ पे हम कुछ रिमार्क भी लिख सकते हैं। तो दिस इज योर अकाउंट डैशबोर्ड। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे रिसिप्ट बनाते जाते हैं तो डैशबोर्ड अपडेट होता है। अगर आपको लगता है कि किसी स्टूडेंट का पेमेंट आज अपडेट नहीं हुआ है, यहाँ पे मतलब रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, जस्ट यू कैन क्लिक ऑन द सिंक्रोनाइज, और यू कैन क्लिक ऑन द सिंक्रोनाइज एंड फेच, तो पूरी रिसिप्ट आज की अपडेट होके आपके सामने आ जाएगी। तो दिस इज योर अकाउंट डैशबोर्ड रिपोर्ट। यहाँ से हम फीस कंसेशन भी इंपोर्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को अगर कोई कॉलेज बोलता है कि हमें कंसेशन देना है स्टूडेंट को, ट्रस्ट ने डिसाइड किया है कि हर एक स्टूडेंट को 1,000 रुपए कंसेशन देंगे, सो यू कैन इंपोर्ट दैट कंसेशन थ्रू दिस पर्टिकुलर लिंक। तो यहाँ पे एक एक्सेल फाइल मिलेगा सैंपल, यू हैव टू फिल इट एंड यू कैन अपलोड। सो हर एक स्टूडेंट के लिए वो कंसेशन यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, और उसका जो भी ड्यू अमाउंट है, ड्यू अमाउंट से कंसेशन माइनस हो जाएगा।
यस, इसमें कुछ डाउट्स? Any doubt till this point? Anyone? Yes, Gokul sir, can proceed. Okay. Just one So- thing, can anyone tell me on the previous dashboard that Gokul sir has demonstrated that if student master is not applied or fees category is not set for the student, in which color it will be displayed? Red color. Red color. Red color. Yes, Gokul sir. Yes. Then one more thing that we have to discuss is how to import that previous year outstanding fee. So उसका लिंक अकाउंट मास्टर में है. Set edit fees receivable from students, that is outstanding balance for previous academic year. तो ERP हमसे परचेस करने से पहले अगर कोई उसका आउटस्टैंडिंग है, जैसे हमने अभी देखा एक स्टूडेंट का कि उसका फर्स्ट ईयर का पेमेंट ड्यू था बट वो सिस्टम में सेकंड ईयर से आगे आया है, तो फर्स्ट ईयर का पेमेंट ड्यू हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं. एंड देन इस पेज पे भी कर सकते हैं इंडिविजुअली, या फिर बल्क में करना है तो अकाउंट मास्टर में सेट एडिट फीस रिसीवेबल ये लिंक है. इस लिंक पे आप जस्ट PRN एंटर करो, फेच रिकॉर्ड करो और उसका कितना अमाउंट बैलेंस है प्रीवियस ईयर का वो यहाँ से सेट कर सकते हैं. और यहाँ पे इंपोर्ट का लिंक भी आपको दिया है, इंपोर्ट बल्क फीस रिसीवेबल ड्यू, तो यहाँ से इंपोर्ट भी हो जाएगा. जस्ट यू हैव टू डाउनलोड दैट सैंपल फाइल एंड फिल इट. सो हर एक स्टूडेंट का जितना भी ड्यूज है वो आ जाएगा. वी जस्ट हैव टू फिल PRN नंबर, नेम, एकेडमिक ईयर एंड फीस रिसीवेबल ड्यू. अब एकेडमिक ईयर में क्या चाहिए, उसका ड्यू कोई भी ईयर का हो सकता है प्रीवियसली, बट वो कौन से एकेडमिक ईयर में हम इंपोर्ट करने वाले हैं. जैसे कि ये स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में कब था, 2021 में था, बट सिस्टम में कब आया है, वो 21-22 में सिस्टम में आया है. तो वो जो रिसीवेबल ड्यू हमें इंपोर्ट करना है वो कौन से ईयर में इंपोर्ट करना है, 21-22 में करना है, 22-23 में करना है. सो दैट वी हैव टू एंटर ओवर देयर एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पे वो अमाउंट आ जाएगा. फिर इस पर्टिकुलर अमाउंट को अगर वो स्टूडेंट पे करता है और अगर उसका रिसिप्ट जनरेट हो जाता है तो रिसिप्ट में, दैट आई विल जस्ट शो इट, रिसिप्ट भी उसका थोड़ा सा डिफरेंट होता है. Yes, we have to रिसिप्ट में भी जो हेड आता है वो ट्यूशन फी या फिर डेवलपमेंट फी ऐसा हेड नहीं आएगा. वहां पे प्रॉपर लिख के आएगा कि प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग फीस, ऐसा आएगा वहां पे प्रॉपर. आई जस्ट चेक दैट वन रिसिप्ट ऑफ सच काइंड and we will see it if available. That is actually a demand from college that whenever the student pays a previous year outstanding, वो पिछला जो भी ड्यू है अगर वो पे करता है तो वो अलग इसमें दिखना चाहिए, मतलब कुछ अलग नोटेशन वहां पे आना चाहिए और समझ में आना चाहिए कि वो लास्ट आउटस्टैंडिंग है. हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं जब वो रिसीवेबल ड्यू पे हो जाएगा दिस पर्टिकुलर अमाउंट 28,000, तो अब एक्चुअली ये ट्यूशन, ये करंट ईयर के फी स्ट्रक्चर में इंक्लूडेड नहीं है, तो फिर रिसिप्ट में ये कैसे दिखेगा. तो डायरेक्टली ऐसा आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये दिस इज प्रीवियस ईयर फीस रिसीवेबल, ट्यूशन फी, डेवलपमेंट फी, यूनिवर्सिटी अदर फी, जो भी आपका पेंडिंग है वो प्रीवियस ईयर का था. ये रिसिप्ट आपका सेकेंड ईयर का है बट फर्स्ट ईयर का जो पेमेंट पेंडिंग था वो यहाँ पे रिसीव हुआ है. तो रिसीवेबल ड्यू के अगेंस्ट अगर पेमेंट होता है तो इस हेड में वो आ जाएगा, दिस पर्टिकुलर हेड. ओके.
Yes, यहाँ पे भी देखिए 15,000 पे हुआ है, उसने 2 इंस्टॉलमेंट में पे किया था ये अमाउंट 28,000। तो जब फर्स्ट 15,000 उसने पे किया है तो बाकी सब डिटेल्स आप देख सकते हैं 0 है, बट प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग 15,000 है। यस Yes. एनी Gopal डाउट? sir, I think we can conclude here. Whatever the remaining things that we can consider in the next session. यस Till this point, anyone is having any doubt? Doubt means, have you understood the process? vast should not- module actually. Yes. So many flows are there, so many type of payments are there Yes. apart from admission. I would like to just ask Deepali or Roshan, is there any different flow in the institute that you are handling? Like in VIT, if you are having any different report on in PCCOE, PCET? No, sir. Most of the things are covered here. No, sir. No, sir. Okay, okay. Gokul sir, you can stop the recording. Yes. I hope you